السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت اور میں آپ کو میزبان سلطان شاہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے 3 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد قوم کو کیا کہا، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، سنیے گا ذرا۔ اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی۔ اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے۔ عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے۔ وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی۔ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور کیسے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پیسہ اکٹھا کرنا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی، ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے، انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے، ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے۔ ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں۔ یہ ملک سے 10 سالوں میں آج یہ کھڑے ہو گئے جمہوریت بچانے کے نام، اور سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ملک میں کون سی تباہی آ گئی۔ ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں ہے، ہماری تو پالیسیز ابھی آگے لوگوں کو پتہ چلیں گی۔ ابھی تو جو یہ نقصان کر کے گئے ہیں، ہم وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں جو انہوں نے 10 سال میں اس ملک کے اوپر تباہی مچا کے گئے، اور یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک وجہ سے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے گئے، یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں، صرف ایک پریشر ہے۔ ان ساروں کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم 30,000 ارب روپے کا آڈٹ کروائیں گے کہ یہ پیسہ کدھر گیا، ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں کرپشن ان کی سامنے آئی۔ کدھر سے ہم قرضے واپس کریں گے، ٹیکس لگائیں گے لوگوں پہ، چیزیں مہنگی کریں گے، اس سے غربت اور بڑھ جائے گی۔ یہ سائیکل چل رہا ہے پاکستان میں، چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، عوام غریب ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں، ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے، یہ چند مہینے ہمارے مشکل ہیں، ہم مشکل وقت سے نکلیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر، یہاں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے، انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ ہم ان کو 100 ارب سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو۔ وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی کابینہ نے بتایا ہمیں کہ 90 روز میں حالات بہتر کر دیے جائیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ 1.5 سال کے عرصے میں حالات بہتر کر دیے جائیں گے، 2 سال کی بات کی گئی، اب بالآخر 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ معاشی طور پہ حالات بہتر ہوں گے، ملک اوپر جائے گا، غریب آدمی کی زندگی بہتر ہوگی۔ یہ نعرہ لگایا گیا، یہ بتایا گیا کہ جب آئے گا کپتان بڑھے گی سب کی شان، بنے گا نیا پاکستان۔ یہ بتایا گیا کہ روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان۔ لیکن پچھلے 3 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا، چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا، آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئیں اور مہنگائی کی شرح بڑھتی رہی۔ مہنگائی پہ وزیر اعظم پاکستان کیا کہتے ہیں، سنیے گا ذرا۔
हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी, वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। इसी जो उठाती है इकॉनमी, इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया। ये रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत भी ये दावे करती है कि हमने तारीखी काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में क्या क्या कहते रहे, ये भी सुनिएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं जब भी इधर आता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह ये, आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी। आज इसी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, पंजाब की कारकर्दगी क्या है और लाहौर के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से कितना ज़्यादा मुतमईन है। क्या उनके हिसाब से बेहतरी आई है या हालात बदतर हुए हैं? ये तमाम सवालात आम आदमी से पूछेंगे क्योंकि आम आदमी की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आम आदमी है जो अपने वोट की ताकत से किसी भी सियासी जमात को हुक्मरान जमात बनाता है या अपोजिशन के बेंचेस पे बिठाता है। तो आवाम से जाके रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। हमारे साथ नाज़रीन, अवामी राय जानते हैं और आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है नहीं मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, क्या मुतमईन है आप? तो कारोबारी तो कोई भी मुतमईन नहीं सर, नहीं मुतमईन। नॉन जब से आए हमारा तो समझ लें कि बटा ही बैठ गया है। क्यों? काम ही नहीं, बहुत कस्टमर ही नहीं है किसी भी। चले जाएं, अब ये नहीं कि हम तो रिटेलर है ना, होलसेलर पे कस्टमर नहीं, हमारा बिकेगा तो हम आगे जाएंगे ना। कस्टमर की क्या महंगा इतना हो गया? महंगा नहीं, परचेज पावर ही खत्म होगी। कारोबार होंगे तो चलेगा ना, कारोबार नहीं चल। कारोबार नहीं हो। देखिए जैसे जो होलसेलर हैं वो बेचते थे, उनके फैमिलीज हमारे पास आती थी किसी से कुछ लेना, वो सिलसिला ही सारा स्टॉप हो गया है। बस कागजों में सब कुछ उनके हिसाब से तो अच्छा चल रहा है, पर हमारे हिसाब से हम तो इधर बैठे हुए जीरो बैठे हैं। आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा? बिल्कुल सही नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हिसाब से इमरान खान ने अपने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं? 3 साल मुकम्मल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। देखें ये तो कुछ कहा नहीं सकते, मैं क्योंकि यहाँ नहीं होता। आप कहाँ से आए हैं? मैं जद्दा में होता हूँ, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती? अवेयरनेस नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप क्या कहोगे, काम कैसा चल रहा है? काम तो फिलहाल तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। 3 साल हो गए हैं ठंडे ही पड़े हुए हैं काम। 3 साल से ठंडे पड़ा है? हाँ, तो जब से ये आया है काम ठंडे ही हैं, कोई काम उसके अलावा काम ही नहीं है। कितना कमा लेते हो? कमा तो 18,000 रुपये कमा रहे हैं फिलहाल तो। पहले कितना 18,000 कमा क्या लेते बनेगा? थे? पहले तो माशाल्लाह 20,000 25,000 भी कमा, काम था ना, मालिक दे देते थे। अब काम नहीं तो मालिक ने कहाँ से देना। तनख्वाह कम कर दी? हाँ, कम में 2 लड़के पहले और काम करते थे साथ, उनको भी निकाल दिया। तो अब कितने लोग काम करते हैं? अब हम 2 कर रहे हैं, पहले 4 करते थे। 4 तो करते हाँ, थे। 2 निकाल अब 2 काम करते हैं 4 का। और पैसे भी कम हो गए हैं, हफ्तावार की छुट्टी कर दी है इन्होंने, वो भी पैसे, उनके भी पैसे हमारे कटते हैं। दिहाड़ियाँ 2 नहीं आते, वो पैसे कटते तो मुश्किल से गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से। मुश्किल क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा कर अब रहे कितने घंटे का काम करते हैं? हैं। काम करें 8 घंटे, पहले कितने घंटे? पहले करते 12 घंटे करते, लेकिन 4 घंटे का वो नहीं था, काम होता था, पैसे आते थे, वो 4 पैसे घंटे मिलते फर्क थे। नहीं मिलता। अब टाइम कम हो गया, काम भी कम हो गया, पैसे भी कम हो गए। पैसे भी कम हो जी गए। हाँ। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। क्या कहोगे, क्या काम करते हो? इनका भी स्टॉल है। आपका भी स्टॉल है? 3 साल में हालात बेहतर हुए हैं? नहीं हुए? क्या ख़राब हुए हैं? ख़राब ही हुए, कारोबार बंद हो गए, टाइमिंग की वजह से वैसे ही कारोबार ठप हो गए हैं, कुछ है ही नहीं। गरीब आदमी तो वैसे ही जो है ना वो ख़राब हो गया, परेशान है? परेशान है जी। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे कंपनी में अकाउंटेंट हूँ।
अकाउंटेंट है, आपके ख्याल से 3 साल मुकम्मल हो गए तरीकन साहब की हुकूमत को, तो जो वादे किए थे इमरान खान ने वो पूरे हुए? अवामी वादे कोई पूरा नहीं हुआ, बाकी इंटरनेशनल का जो है वो कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल अवाम के लिए कुछ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहा है, बस मुनासिब है, यानी पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट कर प्लेयर रहा क्या है। है वो है, लेकिन उसके साथ अवाम पहले है, अवाम ही साथ ना दे होगी, उसके बाद तो पीछे इंटरनेशनल लेवल जाकर क्या करेगा? अवाम साथ नहीं है, नहीं साथ है। परेशान है। देखें जी, पेट्रोल महंगा, अपना बिजली महंगी, और हर महीने कोई ना कोई यूनिट 1 पैसा 2 पैसे बढ़ा देता हर महीने, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। 5-10 पैसे 15 पैसे बढ़ा दी कीजिए, या चार्जेस लगा दिए, कोई और लगा दिए, किसी ना किसी मद में गैस आपको नहीं मिली, बिजली में फिर दोबारा, अगर नवाज शरीफ का लोड शेडिंग का दौर था तो फिर ये दौर कौन सा है? 3 साल बाद वो मान लिया, वो चोर थे, मान लिया। उसकी बात मान लेते हैं वो चोर है, तो फिर ये 3 साल बाद आज ये लोड शेडिंग क्यों है? अगर इसने इंटरनेशनल किया तो अवाम के लिए क्या किया? अगर वो इसने डैम बनाने के लिए पैसे कटे गए तो डैम कहाँ गया? कहाँ है डैम? ठीक है जी, ये लोगों के जो रिमार्क्स है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और जिस तरह एक चीज़ उन्होंने बताया कि एक चीज़ ये अच्छी है इस पिछले 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आवाम ये कह रही है कि आम आदमी जो परेशान है, आम आदमी की परेशानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और लोगों से जानते जी, खान साहब क्या हाल है? खान साहब, हालात बेहतर हो रहे हैं कोई हुकूमत के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान ने जो वादे किए थे आपको लगता है पूरे हो रहे हैं? बस पूरा हो जाएगा, बस टाइम लगेगा तो। हो जाएगा, टाइम लगेगा। अभी तक हालात बेहतर किए हैं कुछ खान साहब ने? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बेहतर किया है? अभी बस सब कुछ बेहतर हो गया, बस वो रिज़्क़ वो अल्लाह देते हैं, बाजार में तुम मेहनत करते रिज़्क़ लाजमी देते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम करते, खान साहब अपना काम कर रहे हैं, हाँ अपना काम करेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ठीक चल रही है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है जी। ये आपने लोगों की सुनी है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए, आपके हिसाब से जो खान साहब ने वादे किए थे, नारे लगाए थे, वो पूरे हो रहे हैं? जी मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है जी, बदतरीन हुकूमत? बदतरीन हुकूमत है। किसी एक वादे पे अगर अमल दरामद है तो आप हमसे ज़्यादा वो जानते तो हैं। कहते हैं बेहतरीन हुकूमत है हमारी। उनके मुताबिक तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ कह सकते हैं, रात को सोते सुबह उठते जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मिडिल क्लास तबका, गरीब आदमी तो मर ही गया ना, मिडिल क्लास तबका दिन ब दिन पिसता जा रहा है। यानी गरीब आप कह रहे हैं मर गया, वो तो खत्म हो मिडिल गया। क्लास गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास लंगर खाने में अब जा रहा है, दोपहर का खाना लंगर खाने से खा रहा है, जो खुद 10-10, 20-20 लोगों को खाना खिलाता था वो अब लंगर खाने में जा इसकी रहा है। वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बढ़ती हुई महंगाई भाईजान, और महंगाई पे कोई कंट्रोल, महंगाई हर दौर में होती है लेकिन दर्जा बदर्जा होती है। ये नहीं कि आप एक तेल के पैकेट के पीछे 180 रुपये बढ़ा दें। पहले आपने सही कहा, महंगाई हर दौर में होती है। महंगाई हर दौर में होती है लेकिन जुल्म नहीं होता, ये नाअहली है, महंगाई के साथ नाअहली है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का भी। किसी जगह पे भी आप चले जाएं, ना तेल में, ना सब्जियों में, ना दालों में, किसी किस्म। यही आवाम की ज़रूरत है भाईजान। बिजली के बिल आसमानों को जा रहे हैं, गैस के बिल कहाँ चले गए। अब एक मिडिल क्लास तबके का जो अपने हाथ से कमाता था वो ज़्यादा परेशान है, गरीब की तो आप बात ही ना करें। गरीब तो बेचारा इस समझे को पाकिस्तानी है ही नहीं है, वो मर ही गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे भाईजान? इमरान खान की, वालेकुम सलाम, इमरान खान की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो वादे खान साहब ने अपोजिशन के दौर में लगाए थे और नारे लगाए थे, वादे किए थे, वो पूरे हुए? जी जी बिल्कुल, एक तो पूरा हुआ ना, कौन सा? कि उन्होंने कहा था मैं सबको रुलाऊंगा। हाँ, अब वो सबको तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा चोरों को रुलाऊंगा। सबको रुलाऊंगा, चोरों को तो उन्होंने लफ्ज़ नहीं यूज़ किया था। दोबारा रिपीट देख लीजिएगा, रुलाऊंगा, और वो उन्होंने हकीकत कर दिया कि अवाम को रुला दिया उसने। अवाम को रुला दिया? जी जी बिल्कुल, अवाम को रुला दिया। क्यों रो रही है अवाम? अवाम खुश क्यों हो? कोई एक काम आप बता दें, कोई एक अच्छा काम बता दें, कोई पाकिस्तान में कोई बंदा एक उसका अच्छा काम बता दें। हुकूमत ये कहती है कि हमने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का जो मकाम है वो बुलंद किया, हमने ये पनाह गाहें बनाई, लंगर खाने खोल दिए, हम स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो हुकूमत कह रही है। हुकूमत का कहने का तो उन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, 50 लाख घर भी देने थे। कहने का क्या, रस्तू साहब कहते थे कि वो वज़ीर आज़म चोर होता है, ऊपर लीडर चोर होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, तो अब चोर कौन है?
वो पुराना पाकिस्तान ठीक था, 76 का पेट्रोल था, 52 की चीनी थी, वो ठीक था आपके साथ? बेहतरीन था, पूरे नहीं हुए। बेहतरीन था, ठीक नहीं था, बेहतरीन था। अल्लाह ना करे कि आपके बच्चे या मेरे बच्चे इस पाकिस्तान में गुजारा करें जिसमें खान साहब का 8 रुपए वाला यूनिट 26 रुपए, वो तो उन्होंने बिल जलाए थे, याद होगा आपके मीडिया को तो ज़्यादा याद होता है। वो 8 रुपए यूनिट वाला बिल जलाया था, तो अब 26 रुपए यूनिट वाले बिल को अब मेरा ख्याल खंबे उखाड़ देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये मौका सुन रहे हैं भाईजान, क्या कहेंगे? मैं खान साहब बहुत अच्छा, खान साहब के साथ है तो ये भी यही बता दें, कोई मसला नहीं। जी भाई, खान साहब ठीक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये ज़िंदगी में होते हैं, ये महंगाई और सब कुछ ये होते हैं ऐसे, इनसे सब कुछ होते हैं अच्छे, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा होएगा। आपके ख्याल से सबसे अच्छा काम खान साहब ने इन 3 सालों में क्या किया? भाई देखो, मेरा खुद अंदर शॉप है, मैंने 11 कोई नुकसान किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये होते हालात ऐसे हैं, जब भारतीय को जगह फिर हम उठ जाएगा सब कुछ। अभी वो ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते है, मेरे सोच से बिल्कुल सही। ठीक है। और लोगों से जान लेते जी, हुकूमत के 3 साल पूरे हो गए हैं, तहरीक इंसाफ की, वफाक की भी, पंजाब के भी। आपके हिसाब से कैसी रही है 3 साल हुकूमत? 3 साल में जितने वादे किए गए कोई एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं? एक भी नहीं, हम हुआ ही नहीं, सारे के सारे झूठ में मबनी था सब कुछ। मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा वादा कौन सा लगा था आपको? ये देखें ना, हमें तो चाहिए पाकिस्तान की खुशहाली, तो जब पाकिस्तान की खुशहाली जिस तरह ये इन्होंने आवाम से वादा किया कि 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, जब 1 करोड़ का आपने कहा है तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर ही जाएंगे ना आप। आपने कोई प्लान तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, कोई आप सोच के जब आप चले हैं कि कुछ है हुकूमत में, आप फिर 30 साल क्या ऐसे ही मारते रहे, गप्पे ही लगाते रहे, हाँगते रहे, जिस तरह आपने सारी जिंदगी लोगों का ही खाया है। हिसाब से नहीं कोई वादा कुछ भी नहीं है, उन्होंने लोगों का खाया। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि मैं बाहर से ला के खिला के ऊपर ले जाऊंगा, वो तो खुद चले गए हैं। अब पूरी आवाम को तो नहीं ऐसे लेके जा सकते ना लोगों से मांग के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जाना। लोग बता रहे हैं कि 3 साल कारकर्दगी पे उनका क्या कहना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दें, हालात बेहतर होंगे। लेकिन बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो वादे हैं उनको पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सबसे बड़ा मसला है आम आदमी का महंगाई का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे हुकूमती नुमाइंदों से ये सवाल करें, उनसे पूछे कि उनके मुताबिक कारकर्दगी कैसी जा रही है, और ये सवाल अपोजिशन से भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं, हुकूमती कारकर्दगी कैसी है, और अगर हुकूमती कारकर्दगी अच्छी नहीं है अपोजिशन के मुताबिक तो अपोजिशन क्या कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी में बात कर रहे हैं। आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू सुनी। पंजाब को भी 3 साल हो गए। लोग सवाल करें कि 3 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी पे बात करने के लिए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात भी हैं, और दोबारा कलमदान इनके पास इत्तलात का भी आ गया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। 3 सालों में इसके सिवा कि फ़याज़ुल हसन चौहान जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वफाकी सतह पे ना, मैं सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अप्रिसिएशन दूँगा कि इन 3 सालों में पाकिस्तान की गैरत, खुददारी, जायज़ अनानियत और पाकिस्तानियत इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से इंट्रोड्यूस कराई विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि काबिल तहसीन है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का लिबास, पाकिस्तान का जूता, पाकिस्तान की ज़बान, पाकिस्तान की ज़बान, पाकिस्तान का अंदाज़। पहले एक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होते थे, 32 इंच का उनका गला था, 42 इंच उनकी वेस्ट थी, और किस अंदाज से 2 पीस पहनते थे, और टाई पहन के टाई कम लगती थी और फंदा ज़्यादा लगता था उनके गले पे। लेकिन जाते बाहर थे जनाब एक मज़ह का खेज किस्म का एक लबो लिबास और जेस्चर, वो कम अज़ कम इमरान खान साहब ने नहीं दिया। फिर दूसरी चीज़ जो हमें फ़र्क नज़र आया, पहले जो आपके नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, बाहर जाना, मलीहा लोधी साहिबा जैसी एक इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी रखने वाली सफारतकार, वो पीछे बैठी हुई है, बाऊजी और उनकी जनाब मिसेज़ और उनका जनाब नवासा जनाब आगे बैठा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मंदूबीन की नशस्तों पे। एक अजीब व गरीब किस्म का जनाब एक आपका स्टाइल होता था। ओबामा के साथ बैठे हैं,
चिट्टे हाथ में पकड़ी हुई हैं, साह खुश्क हुआ है, गिलास पे गिलास पानी पी रहे हैं, ओबामा ये अब नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये सारी ठीक है, चीजें इमरान खान साहब ने एक एतमाद दिया, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो उनका अप्रिसिएशन। बाकी मैं तर्जुमान हूँ पंजाब का, आपने कहा दोबारा नहीं सहबारा जाना, मुझे जिम्मेदारी लगी है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने जिस खामोशी के साथ, जिस आला ज़र्फ़ी के साथ, जिस डिसेंसी के साथ, जिस ग्रेसफुली अंदाज में पंजाब की खिदमत की है 3 सालों में, ये इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले क्या था? इससे पहले था वो फड़कना, थरकना, थरक कर फड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दाक, अजीब व गरीब ड्रामेबाजियाँ आपको नज़र आती थी। जनाब आप अचानक शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, जनाब वो नाचना कूदना शुरू कर देंगे स्टेज पे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे मौजूद है, ठीक है जी। वो जनाब अचानक ही आपके माइक को पकड़ के छाना शुरू कर देंगे, और जनाब आपके 52 अरब रुपया पिछले 10 सालों में आपके 2 जो टेन्योर थे तशहीर के ऊपर लगा देते थे। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12-13 करोड़ में उसकी तशहीर होती थी, TVCs और जनाब SPLs और अखबारात के। वो चीज़ें बुज़दार साहब ने नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि बुज़दार साहब काम बहुत करते हैं, वो बताते नहीं है, नज़र नहीं आता, और बार बार कही जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, अपने पंजाब को डिफेंड करना है। लोग अब ये सवाल करें कि पंजाब में कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लाया गया है बुज़दार साहब की दौर हुकूमत में? तसल्ली से आपने 3-4 मिनट खामोशी से सुनना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 45% बजट CM सेक्रेटेरिएट का, ये आपके बुज़दार साहब ने कम किया। ठीक है। 6 कैंप ऑफिस होते थे, 1 कैंप ऑफिस तक लेकर आए, ठीक है जी। फिर पहले 3 साल में, पिछले 5 साल की हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ की, पहले 3 साल में 19 इजलास कैबिनेट के, हमारे 3 सालों में 46 इजलास हुए। वेरी गुड। इजलास बनाए, इजलास बहुत अच्छी बात है ये। आपके एक एजेंडा जो होता है ना कैबिनेट की मीटिंग का, उसके पीछे 6 महीने से लेकर 2-2 साल की अरकरेजी होती है। आपके 5-6-7 डिपार्टमेंट्स की कोई ना कोई कानून बनना होता है, अवाम दोस्त, इंसान दोस्त, सूबा दोस्त, मुल्क दोस्त, कोई ना कोई पॉलिसी बननी होती है, कोई ना कोई डिसीजन होना होता है। 46। अच्छा, फिर आगे आ गए, कोरोना की जंग आई, आपकी अदालतों ने कोर्ट किया जनाब हेयरिंग के अंदर पंजाब को एप्रिसिएशन के तौर पे कि पंजाब से सबक सीखो, सिंध को, KPK को, बलूचिस्तान को, बाकी सब सूबों को, कि किस अंदाज से इन्होंने परफॉर्म किया। एक बेहतरीन तरीके से जनाब आपने उस्मान बुज़दार साहब ने उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। फिर आगे आ जाए सेहत के हवाले से, आपका 118% से ज़ायद का बजट जनाब एलोकेट हुआ पहले की निस्बत। 100% खानदानों को, 11 करोड़ पंजाब के शहरियों को इस माली साल के एंड तक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत है, जिसमें से 70% को मिल चुका है। बिल्कुल, बाकी जो 30% है उनको मिलेगा, और पंजाब की हिस्ट्री में तस्वुर ही नहीं था इस चीज का। 7.25 लाख की मालियत का वो आपके जनाब फड़कना थरकना फड़कने वाले जो आपकी सरकार थी ना और वजीर आला थे, उन्होंने KPK में पिछले टेन्योर में ना 2013 से 2018 में हमारी हुकूमत के देखा देखी शुरू किया 2.25 लाख की मालियत का, मसी जनाब करके जनाब को 9 से 10 इजला में हौच पौच तरीके से वो शुरू कर सके, वो भी इफेक्टिव नहीं था। हमने ये किया। फिर उसके बाद अस्पताल कम से कम आपके 12 से 15 अस्पताल हैं नए, जिसमें लाहौर के भी 4 करीब अस्पताल शामिल है, यहाँ पे नई तामीर शुरू हुई, और उनमें से भी रिमोट एरियाज के अंदर। ठीक है, अभी शुरू हुई, 5-6 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं आपके सामने लिस्ट अभी आप वक्त कर लें, मैं आपको गिनवा दूंगा कि आपके जनूबी पंजाब के अंदर और बाकी जो कंप्लीट हो गए, जो कंप्लीट हो गए 6, बाकी कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आप सिर्फ और सिर्फ 32,000 आपके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से कि जो पिछले कई सालों से जनरल रिक्वायरमेंट थी अस्पतालों में, वो रिक्रूट नहीं होते थे, वो रिक्रूट किए गए। बिल्कुल ठीक है। अब आप तालीम के हवाले से मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात कहूँ, 21 यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, 6 यूनिवर्सिटियाँ फंक्शनल हो चुकी हैं, 9 यूनिवर्सिटियाँ ज़ेर तामीर हैं। मतलब है उनका प्रोसेस होता है ना पूरा, पहले आप असेंबली से कैबिनेट से अप्रूवल लेते हैं, चार्टर मिलता है, फिर उसके बाद उनकी ज़मीन ली जाती है, फिर बिल्डिंग बनती है, फिर बाकी सारा। 6 फंक्शनल हो गई हैं, चल रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है जी। 9 यूनिवर्सिटियाँ जनाब आपकी कंप्लीशन के करीब हैं, और बाकी तकरीबन आपकी 6-7 के करीब जो है ना उसका फैसला हो चुका है, उसका काम स्टार्ट हुआ है। 21 यूनिवर्सिटियाँ, ये सरकारी सतह पे आप इनके 30 साल उठा के देखें, इन्होंने 30 सालों में। बिल्कुल ठीक है। अब एक सुने, अभी और सुने आप, कॉलेजेस
86 कॉलेजेस नए बना चुके हैं इन 3 सालों में, 76 नए कॉलेजेस बन रहे हैं जो इसी माली साल के अंदर कंप्लीट होंगे, 160 कॉलेजेस। बिल्कुल अगली सुने सबसे इंपॉर्टेंट, उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम नस्लें संवार रहे हैं मुस्तकबिल, हम अगला इलेक्शन नहीं संवार रहे उस जनाब कातिल आला की तरह। ठीक है, स्कूल जो है सुने 32,000 स्कूल अपग्रेड हुए हैं 3 सालों में। बिल्कुल, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल बात सुने ना, मैं आवाम को परफॉर्मेंस बता रहा हूं। 32,000 स्कूल 3 सालों में अपग्रेड हुए, प्राइमरी से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से हाई। बिल्कुल ठीक। इन्होंने अपने 10 सालों में टोटल 7,000 स्कूल अपग्रेड किए, 7,000। अब आप बताएं उस्मान बुज़दार की तारीफ ना करें तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। अब उसी अवाम के जिसको आप ब्रीफ कर रहे हैं उसके साथ सवालात हैं चंद। स्कूलों से शुरू कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। लाहौर शहर में सर एक नया स्कूल तामीर नहीं हुआ पिछले 3 सालों में, एक नया स्कूल तामीर नहीं हुआ पिछले 3 सालों में। एक स्कूल जिसकी बिल्डिंग गिरा दी गई थी उसको बनाना था, वो नहीं बनाया गया। सर ऑन ग्राउंड नहीं सर, ऑन ग्राउंड चीजें मौजूद है ना, मैंने रिपोर्ट किया, दिखाया, नहीं आया। इस 32,000 स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं, प्राइमरी से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से हाई, उसमें लाहौर के भी शामिल हैं। सर वो अपग्रेडेशन एक मुख्तलिफ अंदाज से चौहान साहब, वो या बाकी जगहों पे बने होंगे स्कूल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लाहौर शहर में एक नया स्कूल तामीर नहीं हुआ। मैंने आपको ये नहीं कहा कि नया स्कूल जो है ना वो कंस्ट्रक्शन होना, एक होता है कि आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं ना मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों का नमाजी बन ना सका। हमारे पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान में बदकिस्मती ये है, एजुकेशनल अदारे उनकी बिल्डिंग्स मौजूद है लेकिन वहाँ पे भैंसे, गधे और घोड़े और बकरियां तालीम हासिल कर रही बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं चौहान साहब। लाहौर शहर में पंजाब के दारुल खिलाफा, पाकिस्तान के दिल लाहौर शहर में ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जो डेंजरस करार दिए गए आपकी हुकूमत की जानिब से। आपके वजीर साहब ने मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बताया कि 70 स्कूल गिरने वाले हैं, पैसे नहीं, अभी नहीं बना सकता। तो ये भी तो सिचुएशन है ना सर। डॉक्टर मुराद राज साहब ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की पंजाब हुकूमत ने, हमने जो स्कूल मौजूद थे उनकी शाम की जनाब हमने यूटिलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है सर, ये पहले भी होता था। चले चौहान साहब, लेकिन उसमें क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूएंट, अब आप इम्पोर्ट होकर नहीं आए, हल्के की सियासत करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, गिले भी सुनते हैं। सर बुनियादी लोग सवाल करें कि 3 साल में आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई, क्योंकि वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई हर दौर में होती है, ये बात ठीक है, हर दौर में गरीब कहता है महंगाई बहुत होता है, लेकिन वो कहते हैं इस मरतबा मेरी जो बाइंग पावर है वो कम हो गई, उसके लिए क्या किया जाए? तो आप कहते हैं आम आदमी की। पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फौज के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख के दरमियान मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं फौज के बाद। यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती थी। टीचर्स, क्लर्क्स, जूनियर टीचर, सीनियर टीचर। हमारी सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने डॉक्टर मुराद राज की मिनिस्ट्री के अंदर आते ही एक ऐप बनाकर उस 4.5 लाख की करप्शन को रोक के और 5-5.5 लाख अफराद जिसमें ख़वातीन होती थी अपनी इज्जतें लुटाती थी, सेक्रेटेरिएट में आके मुलाजमीन और जो अफसरान और उनकी पैसा गंवाती थी, खज्जल खारी होती थी। घर बैठ के अपने मोबाइल के ज़रिए से उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र, जो तकरीबन कोई 1 लाख के राउंड अबाउट आई थिंक सो अफराद हैं जिन्होंने घर बैठ के टीचर्स ने और क्लर्क्स ने और जूनियर टीचर इज्जतदार तरीके से अपनी ट्रांसपोर्ट करें। क्या ये आवाम के लिए आसानी नहीं है? अगली चीज़, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पंजाब के अंदर सारे अवाम उससे मुतासर होते थे। लाहौर नंबर की गाड़ी और पिंडी नंबर की गाड़ी जो ना अच्छे दाम में फरोख्त होती थी। उकाड़ा की आपकी जनाब जी हाँ, छोटे अज़ला की गाड़ी की प्राइस नहीं आती नई गाड़ी तो अगला बिल्कुल बेचारा बिल्कुल नई बेचने जाओ तो 50,000 और लाख का डिफरेंस आता था, आके उसको ठुक लग जाती थी। यस बिल्कुल सही बात है। जनाब हाफिज मुमताज़ गुजर साहब की जनाब मिनिस्ट्री के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने यूनिवर्सल प्लेट नंबर दिया। खाता ही कोई नहीं है केड़ा जिला तो केड़ा नहीं, पूरे पंजाब की एक ही जनाब आपकी नंबर प्लेट है। आवाम के लिए क्या आसानी नहीं है? फिर आप आवाम की आसानी की बात करते हैं। हमने सारी चीज़ें जनाब ऑटोमेट की, कंप्यूटराइज की, ऐप्स बनाई, डिजिटलाइज किया। ये हमने हर अदारे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन जो ऐसा भी अगर हर डिपार्टमेंट की बारी बारी बात कर ले तो बहुत से फ्लॉज भी हैं वहाँ पे भाई, फ्लॉज जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे ना सुल्तान भाई।
हम कोई जना फरिश्तों के माशरे में तो नहीं रहते ना सर, लोग नहीं समझते कि तरीके इंसाफ आई थी 90 दिन में ये कर देगा, साल में ये कर देगा, 2 साल में ये कर देगा। ये जो 3 सालों में किया ना, ये अकल के अंधे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन अगले 70 साल भी बरसेगार रहते, इन्होंने ये नहीं करना था। ठीक है, हमने नस्लें सवारी हैं, हमने अपनी नस्लें नहीं सवारी। जहाँ सब महंगाई में क्या कहेंगे? गरीब आदमी का एक बहुत बड़ा मसला है। सुनो, आप तसल्ली से इस पर ना टोकिएगा। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स से मास्टर किया। मैं 40 साल से एक सियासी कारकुन हूँ, 30 साल से मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, पैट्रियट पॉलिटिक्स। मैं अब एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप। ठीक है सर, महंगाई की बुनियादी वजह इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसको पीडीएम आप कहते हैं, जिसको आप अपोजिशन कहते हैं, इन्होंने 45-50 साल जो रज के इस मुल्क को लूटा है, और खसूसन आखिरी 3 साल 2016, 17, 18 इसहाक डार, आले शरीफ, इनको कंफर्म हो गया था कि अब हमें अगला इक़्तिदार नहीं मिलना पनामा के बाद। इन्होंने प्री प्लान्ड बारूदी सुरंगें बिछाई, इन्होंने इकानमी का बेड़ा गर्क किया। इकानमी का एक असूल है सुल्तान साहब, आप याद रखिएगा। अब ये पब्लिक बेचारी को जाना डिटेल से चीज समझ नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत एक नेचुरल वे में सेट होती है। वो नेचुरल वे क्या होता है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको आप देखते हैं, उसमें अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है जी, अगर वो आपका एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी रुपए की कीमत स्टेबल नहीं रह सकती, वो डिवैल्यू होगी। अब हुआ क्या? अब तसल्ली से सुनिएगा, आवाम भी सुने आपके प्रोग्राम के जरिए से। 17.5 तक आपकी आ गई जनाब एक्सपोर्ट लेवल, पाकिस्तान की हिस्ट्री का जनाब पिछले 30-40-45 साल का सबसे लो लेवल इस पिछली हुकूमत में 2015-16 या 16-17 था। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस के आपको जनाब यूरोपीय यूनियन ने आपको इंसेंटिव दिया हुआ था जनाब, वो जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया। उसके बावजूद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये है, इंपोर्ट आपकी 60 अरब डॉलर तक, 60 अरब डॉलर, आपका 50-40 अरब डॉलर का डेफिसिट है, रुपए की कीमत आपकी बरकरार है जी 110 के ऊपर। कहानी क्या थी? ये जो आपका था ना अकाउंटेंट जनाब, आपका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहबदार, जिसको मुंशी कहते हैं, जिनका काम ही 2 नंबरी करना होता है, ठीक है ना जी, कंपनियों की, लोगों की, बिजनेसमैन की, इसने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर्स जनाब मार्केट में जनाब अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर मार्केट में जनाब वो लॉन्च कर देते थे, ताकि जनाब सो कॉल्ड फेक तरीके से रुपए की कीमत बरकरार रखी। ये नेगेटिव तरीका होता है, ठीक है, रुपए की कीमत को, पैसे की कीमत को बरकरार। अच्छा, हुआ क्या? इन्होंने आखिरी 2-2.5 साल तो रख लिया, फिर कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे 10 अरब डॉलर हमारी हुकूमत पहले 6 महीने के अंदर देने की पाबंद थी। बिल्कुल दुरुस्त बात। अगर हम ना देते तो बैंकरप्ट हो जाते थे सर। कीमत जनाब आपकी 360 बैंकरप्ट हो जाते, इतना ऊपर चले जाता का आपका डॉलर होना था 360 रुपए का। दुरुस्त बात है। ये सारी चीजें इन्होंने इस तरह की, हमने आके ओरिजिनल स्टाइल में जब इकोनॉमी को मेंटेन करना शुरू किया, कोलैप्स होना शुरू किया। ओरिजिनल लेके आए ना, रसद तलब रुपए की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बुनियाद पे। अल्लाह पाक के करम से कोविड-19 के बावजूद आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हमने चीजों को, इकोनॉमी को मेंटेन किया। आज इंपोर्ट लेवल नीचे है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने शुरू में बात की कि आम आदमी नहीं समझता, उसको नहीं समझ आती क्या हो रहा है, निजाम कैसे चलना है, डॉलर कैसे ऊपर जाना है, नीचे कैसे आना है, मैनेज कैसे होना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की समझ। लेकिन फिर एक बुनियादी सवाल है सर, वो गरीब आदमी कहता है कि मुझे रोटी सस्ती नहीं मिल रही, मुझे दूध सस्ता नहीं मिल रहा, मुझे चीनी सस्ती नहीं मिल रही, और फिर क्योंकि आम आदमी इतनी डिटेल्स नहीं समझता, वो कहता है कि असद उमर साहब आए, चले गए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए, अब उससे पहले हफीज शेख साहब आए, कहा गया बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फिर उनको भेज दिया गया। आम आदमी तो ये समझता है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको पता है ये बातें होती हैं। चीज़ें इंटरनेशनल फिनोमेना है इस वक्त, कोविड-19 की वजह से भी, और ये जो पूरी मैंने पश्तो आपको समझाई है ना इससे पहले के इसहाक डार और इस नवाज शरीफ के ख़ानदान की, ये 2 बेसिक वजूहत हैं महंगाई, ठीक है ना जी। लेकिन होता ये है कि किसी भी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, कहाँ पे आपका 40 अरब डॉलर का जनाब करंट डेफिसिट है जनाब, ट्रेड डेफिसिट है, कहाँ पे आज आप सरप्लस के अंदर चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पीक का जनाब आपका एक्सपोर्ट लेवल जनाब 25-26 अरब डॉलर ये हमने लेके आए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का फॉरेन रेमिटेंस 27 से 29 अरब डॉलर पहली दफा। खान साहब और इलेक्शन से पहले भी कहते थे। अब ये सारी चीजें जो होना शुरू हुई हैं,
अब इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी होना शुरू हुई है। इसके बाद अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने आपकी इनकम है, आपकी सेविंग है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन सारी चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो रही हैं। बिल्कुल ठीक और है। इंशाल्लाह होंगी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कम अज़ कम इन 3 सालों के अंदर इमरान खान साहब का कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई फुफड़, कोई नजर आया? कोई उसकी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आई? बिल्कुल दुरुस्त कोई कह रहे हैं उसके जाली आप अकाउंट्स नजर आए? आखिर में सुनो मेरी बात। इसी से रिलेटेड सवाल ये ये चीजें कम अज़ कम आवाम सर, के लिए इसी से देना रिलेटेड बड़ी सवाल ये इत्मीनान बख्श है। लोग ये कहते हैं कि एहतसाब का नारा इतना ज़्यादा लगाया, 3 सालों में क्या हुआ? फिर उनका शुगर स्कैम आपका आ गया, गंदम स्कैम आपका आ गया, वो कह रहे हैं उस पर अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा, प्रेशराइज हो रहे हैं, ग्रुप बन गए जिसको आप तोड़ने की भी खबरें आ रही हैं, आप तोड़ रहे हैं JKT ग्रुप को, तो वो किधर एहतसाब का नारा? पहली बात तो ये है, एहतसाब हमने नहीं करना, एहतसाब ब्यूरो ने करना है, एहतसाब नैब ने करना है। हमने तो प्रोसिक्यूशन में हेल्प करनी है, हमारी हुकूमत ने उसने बिल्कुल इम्पार्शल होकर हेल्प की। एक वक्त था कि 156 मेगा स्कैंडल्स पिछले 15 साल से नैब ने अपने नीचे देके उसमें से अंडे निकाल के उसमें से बच्चे निकाल दिए, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट की उस हियरिंग में मैं मौजूद था जब उसके चौधरी कमरुज़्ज़मान की जो उनका ज़ाती पपेट और गुलाम था आले शरीफ और आले जरदारी का, उससे पूछा चीफ जस्टिस और फाजिल जजों ने कि भाई तुम ये क्यों नहीं ओपन कर रहे जना इनकी इंक्वायरी, जना इन 156 मेगा स्कैंडल की? उसने कहा मैं नहीं करूंगा। उसने हुदैबा पेपर मिल के हवाले से पूछा भाई तुम उसमें अपील क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा मैं नहीं करूंगा। पहले ये स्टाइल था हमारे यहाँ इम्पार्शल, अलीम खान, सब्तैन खान, फला जनाब फला, सारों पे हुए। आगे फैसले अदालतों ने करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर देते ना, अमेरिका जाके भी कह देते मैं वापस जा रहा हूँ, एसी उतरवा रहा हूँ, देख रहा हूँ, अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा, फिर उससे ये तासुब निकलता है ना। एक वक्त था हाथों में हाथ देख के हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हसन यार वली, मौलवी फजल रहमान, मौज मेला था। 5 उंगलियां घी में, बल्कि 10 उंगलियां घी में, पहले ये था ना। अब इनकी चीखें हैं, अब कोई स्ट्रेचर पे है, कोई व्हील चेयर पे है, कोई बीमार है, कोई आवाज़ार है, कोई लाचार है, तो ये तो कम से कम इमरान खान साहब पार्टी और PTI एक हो गई, अब बाकी एक हो गई, सारी सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप चौहान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रखेंगे, ब्रेक के समय वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर की कारकर्दगी पे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो परफॉर्मेंस कोई और नहीं दिखा सका, तारीख में बड़े ज़बरदस्त काम किए। इस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। अली परवेज़ मलिक साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के ताल्लुक में मौजूद है, बहुत शुक्रिया अली भाई वक्त देने का। क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर को कैसे रेट कर रहे हैं? देखें सुल्तान मियाँ, ये जो कारकर्दगी की बहस है इसके ऊपर हम बाद में आ जाते हैं, पर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, इसका सबसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि इन्होंने हमारी सफ़ों के अंदर इतनी ज़्यादा नफरतें बो दी हैं, और उसके लिए जिस तरह रियासती इदारों को उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो हेरोइन डाली और ANF को जिस तरह से इस्तेमाल किया, तो ये जो नफरतें बोई हैं ना, इसके बाद इस मुल्क को ऐसे मुश्किल दोहराए पे ला के इन्होंने खड़ा कर दिया कि आज जब हमारे पे दुश्मन भी हमला करता है, अभी लंदन का वाकया हुआ, अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लें, कोरोना वायरस की वबा आती है, तो हम इकट्ठे बैठ के आवाम की खिदमत के जज्बे के साथ मुल्क की ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, पोलराइज कर दिया, नफरतें बढ़ा दी है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बिगेस्ट क्राइम। लेकिन उसकी इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तो वो देते हैं ना, वो कहते हैं हमारे अपने लोग भी तो जेलों में गए, अलीम खान जेल में गए, सब्तैन खान जेल में, वो कहते हैं हमारे सबसे बड़े साथी तरीन उनके खिलाफ भी हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं जेल जाने या किसी को भेजने के ऊपर मैंने कोई आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने आपसे गुजारिश की है कि अपनी पसंद नापसंद को जब आप तोड़ते हैं मुझे बताएं कि किन को सजाएं दिलवा चुकी हैं ये। इन्होंने ऑपोजिशन की, हमारी लीडरशिप की, जो मेरे ख्याल से नेशनल असेंबली के अंदर पहली 2 सफ़े हैं, उन सबको एक एक करके बंद किया। उसके बाद जो आला अदलिया के फैसले आए हैं, आप मुझे बताएं उसके अंदर क्या लिखा है। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि किसी ने अगर पब्लिक पैसे का ज़िया किया आप उसको माफ़ कर दें, बिल्कुल कानून के ताबे हो के
दोहरे मेयार के बगैर आप उनके खिलाफ प्रोसीड करें, पर उसके अंदर मुझे बताएं इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि वजीर आजम साहब अमेरिका में खड़े होकर कहें शायद खाकान मुझे कहता था कि मुझे अरेस्ट करो, ये लो मैंने उसको एसी से जेल उतार दो, मैं उतरवा देता हूँ। हाँ। अब गुजारिश ये इदारों को मजबूत करें, सिस्टम को मजबूत करें, उसकी जद में कोई भी आता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अपनी पसंद नापसंद को इस तरह से मत इस्तेमाल करें, ना इस तरह से इम्पोज। बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन की जानिब से बार बार कहा गया, ऑपोजिशन की जानिब से भी कहा गया चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कर लें, मुआशी तौर पे बात कर लें, ऑन बोर्ड आए, कोविड पे शहबाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए कहा गया मिलकर काम कर लें, ये तमाम तर चीज़ें की ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं दिया गया। नाउ विल कम टू द परफॉर्मेंस। आपके हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि सीएम पंजाब जो काम कर रहे हैं इससे पहले तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ, आप क्या कैसे देखते हैं इसको? सुल्तान में गुजारिश ये है कारकर्दगी को भांपने का आए पहले मेयार तय मेयार तय कर लेंगे तो उसके अंदर उस्मान बुज़दार भी, चीफ मिनिस्टर सिंध भी, चीफ मिनिस्टर केपी के, उन सबको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। गुजारिश ये है कि आप मुझे बता दें, आपके जो ये कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हुए हैं या सड़क के ऊपर जो आम आदमी आपको डेली मिलता है, क्या उसकी जिंदगी आज 3 साल के अंदर बेहतर हुई है कि बदतर हुई है? अगर यहाँ पे रिकॉर्ड महंगाई हुई है और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इन्होंने अपनी ATM नवाज स्कीमें चला दी थी, चीनी के अंदर चोरी की, आटे के अंदर की, दवाइयों के अंदर की, तो उसके बाद एक आम आदमी हमने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदार आपकी हुकूमत है। उन्होंने कहा जितनी इस तमाम तर महंगाई के पीछे इसहाक डार साहब थे। भाइयों मैं गुजारिश ये करूंगा कि मुझे बताएं जो चीनी की उसके बाद 3 फसलें गन्ने की आ गई हैं, आटे की वो जो उसके बाद गंदम की 3 फसलें आ गई, उसके भी ऑपोजिशन जिम्मेदार है। उन्होंने कहीं किसी स्टोरेज के अंदर अगली फसलों को आने वाले को भी रख लिया था। इन बातों को छोड़ दें। मैंने तो आपसे पहले कहा कि जो भी इंसान उस असेंबली के अंदर ऐवान के अंदर लाहौर की अवाम या पंजाब की अवाम मुंतखब करके भेजती है, वो इसी जज्बे के साथ जाता है कि लोगों की खिदमत कर सके। मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह से इन्होंने हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए हैं, हर इंसान की नीयत के ऊपर शक करना शुरू किया है। मुझे पता है दवाइयों की कीमतें हमने महंगी की, चीनी की जो जहांगीर तरीन साहब को और उनकी बाकी जो ATMs हैं उनको जो नवाजने के लिए एक्सपोर्ट की परमिशन दी वो हमने दी, उसके बाद उसको इंपोर्ट करने की इजाजत हमने दी, गंदम को एक्सपोर्ट करने की इजाजत हमने दी। ये सारे के सारे जो है ना खाम खा के लोगों को कंफ्यूज करने के इनके तरीके कार है। गुजारिश ये नालायक तो है ही हैं, इसके साथ साथ क्योंकि इन्होंने ATMs को अपने नवाजना था तो उसका सारे का सारा बोझ एक आम आदमी के ऊपर है। एक ये पॉइंट। दूसरा मेयार मेरी नज़र में जो होना चाहिए वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब जब खुद अपोजिशन में थे, जब वो मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपने लिए क्या मेयार तय किया था? उसके लिए उन्होंने तो माशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर टीवी लाइसेंस फी से लेके हर चीज के ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी दी थी। उन्होंने हमें बताया था कि जी 17-18 लोगों की काबीना बनाऊंगा और उसके मुताबिक एक एफिशिएंट गवर्नमेंट में आपको दूंगा। तो आज मुझे बता दें कि 18 लोगों की काबीना है कि 50 से भी ज्यादा नंबर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहते थे कानून साजी ईवान के अंदर होनी चाहिए। आज मुझे बताएं कि ईवान के अंदर कानून साजी होती है कि ईवान सदर के अंदर होती है, जहां से रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस इशू होते हैं। उसके बाद मुझे बताएं तो सही ना, इन्होंने कौन सा वादा अवाम के साथ अपना पूरा किया है? इसके अंदर हर जगह पे मेरी नजर में, मेरे ख्याल से जो इन्होंने स्कीमें चलाई हैं, जो तरीकेकार रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि रुकने कौमी असम्बली भी है, हल्कों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और आपके हल्के के तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। मैंने कई प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे सड़कें टूट चुकी हैं, बुरे हालात हैं। अब सवाल उठता है कि आप क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में एक तरफ गवर्नमेंट जो कह रही कि हम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लोग ये सवाल करें अपोजिशन किधर थी? आप इकट्ठे हुए, तहरीक बनाई, जलसे किए, आवाज़ उठाना शुरू की, फिर खामोशी होगी, फिर गायब हो गए, अब दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं, कराची में जलसा हो रहा है। देखें, अब आपने 2 सवाल किए। एक तो अपोजिशन की तहरीक को हमने किस तरह से मजबूत करना है ताकि इन नालायकों से छुटकारा हासिल किया जा सके, और दूसरा ये कि हल्कों के अंदर क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं उससे गुजारिश ये करूँगा थोड़ा सा ना 2018 से पहले का टाइम भी जरा देख लें कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी मदद के साथ उस हल्के की किस तरह से शक्ल बदली गई। वहाँ पे जो कॉलेजों का निज़ाम बनाया गया, वहाँ पे जो सड़कों का जाल बिछाया गया, वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, वहाँ पे डिस्पोजल के सिस्टम को वहाँ पे रोबस्ट बनाया गया, अंडर पासेस बनाए गए, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए। ये सारा काम वहाँ पे हमने करने की कोशिश की। यकीनन बहुत सा काम और होने की जरूरत थी क्योंकि वो एक पसमानदा इलाका है, तो वो उसके लिए हमारी ख्वाहिश थी कि अगली दफा जब हुकूमत आए तो हम उसके अंदर और बेहतरी ला सके। पर इमरान खान साहब जो लाहौर, लेकिन अली भाई आई स्टॉप यू, जो आपने बात की है, जितना काम आपने किया ये सब काम तबाह हो रहा है।
بالکل ٹھیک میں آ رہا ہوں تباہ ہو رہا ہے. لیکن سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے کام کیا اس کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی آپ کی چاہے لاہور کی لیڈرشپ ہو, پنجاب کی لیڈرشپ ہو, جس طریقے سے مسلم نواز متحرک تھی, حلقوں میں موجود تھی, آپ کے رکن قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, ایون جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ بھی آپ کے تھے, اس طرح آواز نہیں اٹھائی گئی. میرے بھائی میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلے اب اس کو بھی جواب میں بالکل دے دیتا ہوں کہ ہم نے کیا ایک افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ لاہور کی جو گریونسز ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. میں جو بات آپ سے کر رہا تھا, ہم نے تو میڈیا کے اندر جا کے اپوزیشن نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے ہر جگہ ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے جو منصوبے چھوٹے چھوٹے آپ کو بتاؤں گا, کوٹ خواجہ سعید ہسپتال وہ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا جس کو شہباز شریف صاحب کی مدد کے ساتھ ایک بھرپور فنکشنل ہاسپٹل بنایا گیا. وہاں پہ ڈائلسس سینٹر میں نے ذاتی دوستوں کی مدد کے ساتھ وہاں پہ مفت مشینیں لا کے پرووائڈ کی گئی اور وہاں پہ یہ کمٹمنٹ دی. اور حمزہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ وزٹ کی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نیا ڈائلسس کا کمپلیکس بنے گا. اس کے بعد اس کو میں وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے ان کو لے کے آیا, انہوں نے کہا جی جتنی مشینیں چاہیے ہوں گی ہم حکومت کا بوجھ بھی گھٹائیں گے اور ہم وہاں پہ ڈونیٹ کریں گے. آج بھی وہ بلڈنگ جو ہے وہ انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ جو میں ساری آپ کو باتیں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد لوگوں کے لیے آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ہم نے تو اس حد تک ان کو کہا کہ بھائی یہ منصوبے جو ہیں آپ کو اگر یہ شہباز شریف صاحب کی خدمت کا ریکارڈ یا شہباز شریف صاحب کی خدمت کی یاد دہانی کراتے ہیں, آپ ان کی تختیاں بدل دیں. آپ اپنی تختیاں لگا کے جس طرح آپ نے باقی کے کاموں کا بھی روز افتتاح کرتے ہیں, ہمارے حلقے میں بھی آ کے ہسپتال کمپلیٹ کر دیں, اسپورٹس کمپلیکس کمپلیٹ کر دیں. انہوں نے تو اس کی بھی یہاں پہ کوئی قدر نہیں کی. انہوں نے جو ان کی ذہنیت تھی, آپ کو یاد ہوگا یہ نواز شریف صاحب جب باہر سے آ رہے تھے لاہور ایک بھرپور جلوس کی شکل کے اندر ایئرپورٹ جا رہا تھا, تو آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے کیا طنز کیا تھا کہ لاہوری تو گدھے ہیں, کہ ایسی لیڈرشپ کے پیچھے لگتے ہیں جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا جو ان کے دل کی نفرت ہے اور جس طرح سے لاہور کی عوام نے اس پی ٹی آئی حکومت کو رد کیا تھا الیکشن کے اندر, پی ٹی آئی کے نمائندوں کو رد کیا تھا, میرے خیال سے اس کا بدلہ یہ لاہور کی عوام سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہاں تک آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے لاہور کے ایشوز کو اٹھانے کے لیے, اپنے حلقوں کے ایشو اجاگر کرنے کے لیے, گزارش کروں گا میری فیس بک کے اوپر آپ چلے جاؤ, وہاں پہ وال کے اوپر ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ جو چھوٹی موٹی اپنی حیثیت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں. جو باتیں ہم نے اسمبلی کے فلور کے اوپر قوم کے لیے جس طریقے سے متحرک ہو کے آن اسٹریٹ موبلائز کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اب آپ آگے کہ جی کہ جو تحریک اپوزیشن کی تھی اس کو ہم کیوں منطقی انجام تک نہیں لے کے جا سکتے. اب آپ اس کے اوپر آگے دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اتحاد کے اندر چلتے ہیں نا, اس کے اندر جو بیسک جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ اعتماد ہوتا ہے. اس اعتماد کی فضا کو کس نے ٹھیس پہنچائی ہے چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے, اور اس کی وجہ سے تحریک کو بھی نقصان ہوا ہے اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی حکومت کو فائدہ اٹھایا. اس سے میں ڈینائی نہیں کر سکتا. مگر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر, شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اور مریم صاحبہ کا جو بھرپور بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے کیا. مجھے آخر میں بریک لینی ہے سر, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس کو یہ کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی, ہر قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں. مجھے آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا, وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, کہ 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی نہ پنجاب حکومت کو نہ وفاق کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچا. البتہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ مسلم لیگ نواز کی 2 گروپنگ بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے. ایک گروپ ہے مریم نواز کا اور دوسرا گروپ ہے شہباز شریف کا. تو کامیاب تو پھر حکومت ہو رہی ہے, اپوزیشن آپ کی بڑی جماعت ہے, آپ کی گروپنگ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر کس طرح سے فریکچرز آئے, اس کے پیچھے کیا بنیادی وجہ تھی اور کن نے وہ حرکت کی, وہ میں آپ کی آڈینس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ کس نے باپ پارٹی سے جا کے ووٹ لے. بالکل ٹھیک ہے, میں تو مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو قائد ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے. آپ کے خیال سے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے, چاہے وہ مریم نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, کوئی نہیں کرتا. جو بحث ہوتی ہے پارٹی کے اندر وہ طریقہ کار کے اوپر ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا جو مشن ہے یہ آئین کی بالادستی کا, اداروں کی مضبوطی کا, کس طرح سے اداروں کو آپ نے یہ انکریج کرنا ہے کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں, اس کے اوپر آپ نے اپروچ کس طرح کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے حساب سے مفاہمت کی پالیسی چلنی چاہیے یا جو اسٹریٹ پاور ہے مریم نواز کے تھی موبلائز
کرو, اٹیک کرو. دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ جو حالات اس وقت خطے کے بن رہے ہیں, میری ذاتی نظر کے اندر اس کے اندر عمران خان صاحب کو جو پہلی چیز کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر اتحاد کو بڑھاتے, وہ اس قوم کے اندر سب کو اکٹھا کرتے, کیونکہ جو اس وقت آپ کے دونوں بارڈروں کے اوپر صورتحال ہے نا, اس کے اندر اگر کوئی بھی پارٹی سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ناظرین, رکن قومی اسمبلی میں موجود تھے. اپوزیشن کا موقف بھی آپ نے سنا, گورنمنٹ کا موقف بھی آپ نے سنا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. درخواست یہ کہ بلائنڈ فالوورز نہ بنے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہماری کمیونٹی کا کہ ہم بلائنڈ فالوورز اتنے بن جاتے ہیں کہ تنقید کو برداشت بھی نہیں کرتے اور تعریف کو برداشت بھی نہیں کرتے. 2 سال بعد آپ نے ووٹ دینا ہے, ووٹ سے آپ نے منتخب کرنا ہے. ہم نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ان 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس سے آپ خوش ہیں, وہ حالات بہتر کریں, یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حالات اس سے خراب پہلے کبھی بھی نہ تھے. آج کے پروگرام میں ہمارے سلطان شاہ دیجیے گا. اللہ نے کے بعد